Okay, so good morning, all of you. And let's start our session with SGX Nifty. So SGX Nifty is right now plus 66. So there could be a flat or near to flat entry positive side. Okay, there'll be no gap up, a big gap up today. It could be flat or near to flat opening in positive side, right? And the difference, it could be around 10, 20 to 50 points. Okay, because the SGX Nifty is 66, so around 50 points के आसपास हमको difference opening में we can see. Okay. Now, if you see the global indices, these are also mix and match. No big difference. Only the Dow Jones is a bit down, very bit down as compared to other indices. And the futures are all futures are positive. Then we come to commodity. Commodity is right now. If you saw the yesterday's chart, there is a downside momentum. I'll show you that also. But right now it is positive with small amount. So and the currency is also down. So overall, if we talk about yesterday's momentum, so both of these are down as compared to last few days. So this is good for Indian economy that I have already discussed with you all, because we are importing crude. So if this price increases as well as this price USD value increases, so it's negative for Indian economy. So as of now, it is stable. So overall, it is positive for our economy, right? Now the next thing is, if we check FIDI data. So overall, I say it is a mix and match sentiment, not a fixed direction. We can analyze through this data, because यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो we have mix and match sentiment. There is slightly bullish and slightly bearish. So overall, it is a mix and match, or you can say indecisive condition right now. And so only one thing right now. So this is flat, this is mix and match, and only OI data can help us to analyze what could today's momentum, right? So as of now, there is stability in the market. कल का जो डेटा था, हमने जो मॉर्निंग में एनालाइज किया था, उसमें ये एक अप्रोक्सीमेशन लिया था कि मार्केट विल ओपन विद अ गैप अप, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल, फॉर फ्यू टाइम इट विल गो अप, देन इट विल कम डाउन अगेन. बट कल से सिमिलर सा मोमेंटम था, बट नॉट 100%, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो इट वेंट अप, वेंट डाउन ऑल्सो, बट नॉट फॉर यू नो ज्यादा देर के लिए. Ma'am, this is e-Mudra. Yeah, I'm changing it. I know. I'm changing it. Okay. Yeah. Okay. So yes, if we see this momentum, it opened up gap up, then it went up, then it went down, but it it was moving in within this first 15-minute price range. So overall the data was sideways. Okay. So हमने मॉर्निंग में जब डिस्कस किया था, तो ये भी डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिटी है साइडवेज रहे, कोई बड़ा मोमेंटम ना आए. बट आज क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आज वी कैन सी वोलेटिलिटी, वी कैन सी अ गुड मोमेंटम टुडे. ओके. सो ओवरऑल जो रफली कल का डेटा था, वो हमारा जो एनालिसिस था समहाउ सिमिलर सा ही था. लेकिन आज जो है, वंस अगेन देयर इज अ mix and match sentiment according to all complete data. And if you see the OI data, now there is a change, small difference in OI data. यहाँ पे हम देखेंगे तो put OI is less than call OI. So if put OI is less than call, that shows कि आपका जो support है वो weak है as compared to आपका resistance, right? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो almost 1 CR का difference, 90 lakh कह सकते हैं हम इसको. तो there is a difference of 1 CR, and this shows कि as of now सपोर्ट इज वीक. तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे की साइड में मोमेंटम देगा. लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो वहां पे भी अगेन कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव या कोई बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज अभी मार्केट में नहीं है. तो ओवरऑल देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, जो कि अभी हम जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसको फॉलो करते हुए वी कैन प्रिपेयर अ व्यू. तो राइट नाउ हम लोग क्विकली हम लोग लेवल्स को प्लान कर लेते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है, तो हाउ वी कैन प्लान आर ट्रेड्स. ठीक है. सो एज ऑफ नाउ जहां पर भी मार्केट है, दैट इज 24,250 के आसपास मार्केट है. एंड राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो जो, अगर मैं बात करती हूँ सपोर्ट की, इफ यू टॉक अबाउट सपोर्ट ओनली, तो हाईएस्ट सपोर्ट जो है वो इस लेवल पर है, राइट. तो इफ सपोर्ट इज हेयर, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होके नीचे मार्केट ओपनिंग देता है, या ओपनिंग के बाद में इस सपोर्ट को ब्रेक करके
और नीचे बड़े रेड कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो वी कैन फोकस ऑन दिस डाउन साइड। और इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो डेफिनेटली 24,100 होगा। 24,100 के नीचे भी क्लोजिंग मिलती है तो वी कैन कंटिन्यू इन दिस दैट डायरेक्शन, अगर हमारे पास हम इफ वी आर ऑलरेडी इन दैट ट्रेड। अगर नहीं है तो उसके बाद में जो है 24,000 है। सो 24,000 could be the maximum you can say level for today, I mean not maximum, the minimum level for today। ठीक है, उसका रीजन ये है कि अभी जो मार्केट का सेंटिमेंट है वंस अगेन कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, तो मूवमेंट अगर होता भी है तो 200 से 300 पॉइंट ज्यादा नहीं होगा। ऑल्दो जैसा हम देख रहे हैं मार्केट निफ्टी इज मूविंग मोर देन 300-400 पॉइंट्स अ डे नाउ इट इज, बट फॉर टुडे क्योंकि at that particular time we have some certain news, but right now there is no big positive or no big negative news, so the maximum range for the today could be डाउन साइड के लिए 24,000, और अगर हम अप साइड की बात करते हैं तो 24,300। बट अगर ओपनिंग ही हमको 50 पॉइंट्स अप मिल जाता है तो ये रेंज ब्रॉड हो जाएगी एंड इट कुड बी मैक्सिमम 24,400। सो डाउन साइड के लिए 24,000 एंड अप साइड के लिए 24,400, इसके बीच का हमको रेंज आज मिल सकता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो अभी का डेटा है, बिकॉज मिक्स एंड मैच इन एवरीवेयर है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अगर हम FIDI डेटा देख रहे हैं तो ये भी मिक्स एंड मैच है, तो देयर इज नॉट अ क्लियर डायरेक्शन राइट नाउ एज वेल एज नॉट अ बिग गैप राइट नाउ। सो दिस इज द लेवल्स फॉर निफ्टी। देन उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, पुट साइड कम है, कॉल साइड ज्यादा है, दैट शोज की सपोर्ट जो है वो वीक है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हमको अगर थोड़ा सा गैप अप मिलता है तो देयर कुड बी 100 और 150 पॉइंट्स मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमको ओपनिंग जो मिलेगी ये ऑल नियर टू 56,400 के आसपास हमको ओपनिंग मिलेगी। उसके बाद में जो मार्केट मूव करेगा, अगर अप साइड की हम बात करते हैं, कॉल साइड की या लॉन्ग साइड की हम बात करते हैं, तो अगर हमको 56,500 के ऊपर हमको ग्रीन कैंडल की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एक फोकस करने वाली बात है कि हम वीक कैंडल पे फोकस नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडल पे करेंगे। डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रॉन्ग कैंडल जो होती है उसका बॉडी बड़ा होता है, विक छोटा होता है, और वीक कैंडल का मीनिंग हो गया कि बॉडी छोटा एंड विक बड़ा, ठीक है। तो विल बी फोकसिंग ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमको 56,500 पे मिल रही है 15 मिनट्स की, देन वी कैन फोकस ऑन कॉल साइड्स। जस्ट इसका कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आपको 56,000 के नीचे, ठीक है, जो कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ अभी के लिए हाईएस्ट सपोर्ट, नियरेस्ट सपोर्ट आपका यहाँ पे, अगर मैं इसका सारा डेटा ओपन करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैक्सिमम डेटा ओपन करती हूँ, तो जो भी हाईएस्ट सपोर्ट है यहाँ इस लेवल के बाद वो आपका 56,000 ही है। तो इसके नीचे अगर हमको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है 15 मिनट्स की, तो देन वी कैन फोकस ऑन पुट साइड ट्रेड्स, ठीक है। तो वापस कॉल साइड के लिए 56,500 के ऊपर और पुट साइड के लिए 56,000 के नीचे अगर हमको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिलती है तो उस डायरेक्शन में हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बाय चेकिंग स्पॉट एज वेल एज स्ट्राइक चार्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। ये हो गया। देन आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसमें हम थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करेंगे, कोई रेंडम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, कोई एग्रेसिव एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। एंड यस, इसके लिए जो लेवल है डाउन साइड के लिए 78,000 रन सेकेंड अगर आप देखोगे तो इसके बाद में जो आपको हाईएस्ट सपोर्ट दिख रहा है वो 78, सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट दिख रहा है वो 78,000 पर ही है। तो अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया और नीचे हमको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, दैट मीन्स कि अब नेक्स्ट जो लेवल हम हमारा जो लेवल टू बी अचीव्ड हो सकता है 77,500 हो सकता है। मतलब इसके नीचे अगर मैंने कोई ट्रेड प्लान किया तो मैं इस लेवल तक के लिए अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑन स्ट्राइक एंड सपोर्ट बोथ, ठीक है। देन अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो जो करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग अपने को जो ओपनिंग मिलेगी वो 78,200 के ऊपर ही मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसके ऊपर अगर हमको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है तो वी कैन प्लान फॉर दैट डायरेक्शन। एंड जो नेक्स्ट हमारा लेवल क्लियरली हमको दिख रहा है अकॉर्डिंग टू आई डेटा इज 78,200, ठीक है। सो एक्सट्रीमली सॉरी, इसके ऊपर की ग्रीन 78,500 के ऊपर की ग्रीन कैंडल, 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर हमको मिलेगी तो फिर हम कॉल साइड के ट्रेड्स को प्लान करेंगे। प्लस एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम स्ट्राइक और स्पॉट दोनों को ऑब्जर्व करते हुए अपने उसके प्राइस एक्शन को कंफर्मेशन लेते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना एग्जीक्यूशन करेंगे। नाउ क्विकली अगर हम आते हैं चार्ट्स पे, तो चार्ट्स पे हम देखेंगे कल मार्केट साइडवेज था, ठीक है, बट करंटली अगेन सिनेरियो इज पॉजिटिव एंड यू कैन से इवन मिक्स एंड मैच भी होता है। तो हमको कॉल साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। अगर हम लेवल्स की भी बात करते हैं तो ये हमारे की लेवल्स हैं, ठीक है। तो प्रीवियस डे हाई लो
का भी रेंज हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे। प्लस एक जो जो आपको रेड लाइन दिख रही है स्लांटेड, दिस इज अ ट्रेंड लाइन जो कि मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के बेसिस पे ड्रॉ की है। ठीक है, सो इट इज शोइंग अस अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, इस रेंज को भी सिर्फ इस रेंज को कंसिडर करते हुए भी चलते हैं, तो फिलहाल ये ऊपर की साइड में ही अपने को इंडिकेशन दे रहा है। एंड उसके बाद में ये कुछ लेवल्स हैं जो कि नेक्स्ट अचीवेबल लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के लिए। तो ये मैं आपके साथ चार्ट शेयर करूंगी, उसमें आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट जो मैं शेयर करती हूँ उसमें आपको ये लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो हम लोग जो भी ट्रेड प्लान करेंगे अब उस समय जो भी प्राइस एक्शन है, देखिए कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद में स्पेसिफिक टाइम पे जो भी प्राइस एक्शन है उसको हम लोग देखते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। आइडियली अगर आप लोग किसी भी इंडेक्स में प्ले करते हो या किसी भी इंडेक्स में अपना ट्रेड प्लान करते हो, तो आप लोगों का जो सेटअप है वो होना चाहिए कि सेंटर में आप इंडेक्स का चार्ट रखो, लेफ्ट में कॉल का रखो, राइट में पुट का रखो। तो उस टाइम, ऐसे टाइम पे जब आप ट्रेड करते हो इवन ऑन साइडवेज ट्रेंड भी, तो आपको एक क्लैरिटी रहता है कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना है। कल हमने हमारे कम्युनिटी मेंबर के साथ में ट्रेड किया था और उस वक्त हमने सेम यही पैटर्न फॉलो कर रखा था कि हमने तीनों चार्ट्स लगा रखे थे, स्पॉट भी, स्ट्राइक दोनों, कॉल एंड पुट। तो उस समय जो सेंटीमेंट बना उसने हमको इंडिकेशन दिया पुट का, जबकि कल अपसाइड का ट्रेड चल रहा था एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बट क्विकली क्योंकि जो कॉल साइड था वहां पे एक स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल हमको दिखा, उसके अकॉर्डिंग हमने पुट में ट्रेड लिया एंड हमारा ट्रेड वो पॉजिटिव गया। विद इन 5 to 15 मिनट्स हमको उसका रिजल्ट मिला और बहुत अच्छा रिटर्न हमने उसमें निकाला था। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आपका सेटअप होना चाहिए सेंटर में इंडेक्स, लेफ्ट या राइट वो दैट्स इट्स अप टू यू। बट एक आपका कॉल का चार्ट भी होना चाहिए एटीएम, एंड आपका पुट का भी होना चाहिए। तीनों चार्ट्स को सेटअप के साथ में अगर आप काम करोगे तो आपको उसका रिजल्ट, मोर क्लैरिटी आपको रिजल्ट में आएगा और आप अपने ट्रेड को भी क्लैरिटी के साथ प्लान कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ही सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है एंड यहाँ पर भी लेवल्स हमने प्लान करेगा, प्रीवियस डे हाई लो को मार्क कर रखा है। दीज आर की लेवल्स, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो भी बनेगी उसको भी आप मार्क करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करोगे। एक छोटा सा और ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अ बिट इज वीकर एज कम्पेयर टू निफ्टी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट 15 मिनट की कल की कैंडल देखोगे तो मार्केट पूरा उसकी रेंज में और साइडवेज मूव किया, ऑल्दो यहाँ पर भी साइडवेज था, पर यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की रेंज के नीचे मूव किया था। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की रेंज के अंदर मूव किया था। तो इससे ये पता चलता है कि अगर अब मैं स्ट्रेंथ की बात करूं इन दोनों के कंपैरिजन में, तो अभी निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, राइट। एंड यस, सेंसेक्स ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह मूव करता है, तो इस पे कुछ डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आज इसमें एक्सपायरी है तो हम कॉशियसली अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। प्रॉपर प्राइस एक्शन ओआई डेटा को देखते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे एंड आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे, राइट। So yeah, so on that note, let's conclude today's session. We'll meet tomorrow at the same time, that is 7:45 a.m. Thank you.